Hello everyone, this is Advocate Isha Kapoor and you're watching Vlogish. As I was ready for making another vlog today, I got a DM, an Instagram DM from one of our subscribers, and she said that she's confused about something really important. She informed me that the dates for CLAT 2022 exam have been released and she's still in her 12th standard. She also needs to prepare for her board exams that are approaching, but she also wishes to give the CLAT 2022 exam and secure a good rank in one of the NLUs. And for that she needed to know the books, she needed to know the paper pattern, the target that she should set, and an analysis of the 2021 paper as well. I thought, why should I not make an entire video dedicated to this query only, because I know many of you are waiting for this. First and foremost thing, whenever you need to have any information with respect to the CLAT exam, always visit the official website, that is the consortium of nlus.ac.in, and do not rely on any other source. I have also gained basic information about the format, structure, paper, dates and everything from that website only. Now, first you need to know that CLAT is only one of the exams that is there for the law entrances. So if you want to enter into the law profession, there are various entrance exams, but CLAT is that exam which can take you to the NLUs, the National Law Universities in India. Some other private universities also accept the CLAT score. But apart from the CLAT, you may consider giving other exams as well if you want to get admission into various other state universities, let's say. So this CLAT exam, let us focus on this only. This is a 2-hour exam. This will be a 2-hour exam in 2022. It will consist of total 150 questions. For each correct answer, you will be given 1 mark. And if you mark any answer incorrectly, then 0.25 mark, that means 1/4 of the mark, will be deducted for every answer. So in CLAT exam, you must have a set target in mind that I am going to do this many questions and I am going to attempt this many tukkas or trial. In case you want to secure a rank, a position into the top NLUs, top 4-5 NLUs consisting of Bangalore, Nalsar, Hyderabad and other NLUs, then you must secure a rank within top 500 ranks in CLAT. But for other NLUs as well, you should secure rank within the first 2000 ranks. The last rank that an NLU took last year was around 2000 only. It was 2040, I think. So to secure this rank, now you must be wondering how many marks do I need to secure in the CLAT exam. For your information, the topper who topped the last year's CLAT examination secured 125.5 marks out of total 150 in the CLAT exam. This was the highest. But even if we secure 90 to 100 marks, there is a good scope of entering into a very good NLU in case you are focusing on that. Therefore, I will give you a target at the very beginning of this video. आप में से जो सब भी लोग जज बनने के ड्रीम्स लेके बैठे हो आज, या फिर जो जुडिशरी एग्ज़ाम देना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो, उनके लिए ये बहुत बड़ा ऑफ़र है अनअकैडमी का, ओनली 14 से 16 मार्च तक के लिए, यानी कि सिर्फ कल तक के लिए, जिसमें आपको इंस्टेड ऑफ रेगुलर 10% डिस्काउंट जो वीलॉगिश सब्सक्राइबर्स को मिलता है, उसके अलावा आपको 20% डिस्काउंट मिल सकता है। 10% को बिल्कुल भूल जाओ। अनलॉक 20 कोड का अगर आप यूज़ करोगे और वीलॉगिश सब्सक्राइबर हो, एंड में वीलॉगिश के कोड का यूज़ करोगे तो आपको 20% ऑफ मिलेगा सब्सक्रिप्शन पे। और अभी अगर आप जो सब्सक्रिप्शन लोगे, इट विल बी सेम एज द सब्सक्रिप्शन यू विल गेट आफ्टर 2 days, बट 2 दिन के बाद ही उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि ये से स्पेशल ऑफर आया है, वो भी ओनली फॉर वीलॉगिश सब्सक्राइबर्स। यहाँ पे आपको अपनी स्क्रीन पर एक नया बैच भी दिख रहा है जो स्पेसिफिकली MPCJ प्रीलिम्स के लिए डिज़ाइंड है। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू वांट टू क्रैक द MPCJ एग्ज़ाम। और अगर आपको लगता है कि एक बार मैंने कोई बैच ज्वाइन कर लिया पर मुझे फिर वो पसंद नहीं आया, मुझे वो उनकी क्लासेस पसंद नहीं आ रही है, तो आप और किसी एजुकेटर की क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास कोई बार नहीं है कि अगर आपने इन्हीं 4-5 टीचर्स को चुना है तो आपको इन्हीं से पढ़ना होगा। इनफैक्ट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने पे तो आपको अपने टीचर्स के साथ लाइव सेशंस भी मिल जाते हैं यहाँ पे। ये बहुत अच्छा टाइम है अनअकैडमी का PCSJ सब्सक्रिप्शन लेने का, अगर आप बहुत श्योर हो जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करने के लिए। अगर आप प्राइजेस भी देखो, वो भी अफोर्डेबल है। आई थिंक you should try it now. And that target is, if you are starting to prepare now and if you're watching this video with a dedicated intent in your mind, then you should have this target that I will do at least 110 questions correctly in the CLAT exam. I'm not saying that you should attempt all the 150 questions and do it correct. 40 questions, 40 questions that you do not know in the exam, leave them out.
Clearly leave them out. Do not even think about them without completing the first 110 questions that you are sure about. And about those 40 questions, you can do the tukka thing also. You can make trials in that exam, but limit your attempts to less than 10. अगर आप तुक्का लगाने वाले हो किसी क्वेश्चन में तो 5 से 10 क्वेश्चन से ज़्यादा में मत लगाना उस चीज़ को। 110 क्वेश्चंस आपको श्योरली अपने दिमाग में ऐसे लेके चलने हैं जहाँ से आपको लगता है कि यहाँ से मुझे शॉर्ट मार्क्स आएंगे। अगर आप 100 का टारगेट करोगे तब भी आप 90 to 100 जाकर कर पाओगे, और अगर आप ये 100 या उससे ज़्यादा कर पाते हो तो डेफिनेटली आपको एक अच्छे NLU में प्लेस मिलेगा ही मिलेगा। अब प्रॉब्लम ये रहती है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के साथ में मैं कोचिंग इंस्टीट्यूशन कैसे ज्वाइन करूँ, या फिर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं घर पे कैसे प्रिपेयर करूँ। लेट्स स्टार्ट विद दैट स्ट्रैटेजी। To crack the CLAT exam is very simple. The only thing that you need to keep in mind is that it's a competitive exam. Competitive exam में बहुत बार हार्डवर्क से भी ज़्यादा या हार्डवर्क के इक्विवेलेंट लेवल की चीज़ जो मैटर करती है वो है आपकी प्रिपरेशन टेक्निक, टिप्स जो कि आप लोगों से ले रहे हो, एक्वायर कर रहे हो और उसे समझ रहे हो। सब्जेक्ट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो 5 प्राइमरी एरियाज़ हैं जहां से आपको क्वेश्चंस आते हैं CLAT एग्ज़ाम में और आएंगे भी। उसमें से पहला एरिया है इंग्लिश। तो हम इंग्लिश के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। अगर हम 2021 का CLAT एग्ज़ाम का क्वेश्चन देखें, एग्ज़ाम पेपर देखें, तो वहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट से टोटल 30 क्वेश्चंस आए थे। वो 30 क्वेश्चंस में लीगल वोकैबुलरी के भी क्वेश्चन थे, एडिटिंग एंड ओमिशन के भी क्वेश्चंस थे जो आपके जनरली 11th 12th 10th 9th स्टैंडर्ड में आते हैं इंग्लिश एग्ज़ाम में। फिर अगर जो मैंने ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स देखे जो पूछे थे, क्योंकि जनरली वहाँ पे आपकी ग्रामर ही टेस्ट करी जा रही है, वो थे 6th से लेकर 10th तक की ग्रामर से रिलेटेड। आप लोग बहुत बार पूछते हो कि क्या कोई ऐसी बुक हो सकती है जो हम इंग्लिश के लिए रेफ़र कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन जो रहेगी वो रहेगी कोई भी बेसिक ग्रामर की बुक 6 से लेकर 10th तक की, 6th 7th 8th 9th 10th, ये सारी बुक्स आपको ग्रामर की निकालनी है और उन्हें रिवाइज़ करना है। वैसे तो 8th तक की बुक्स भी काफ़ी हैं क्योंकि तब तक आपको ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दिए जाते हैं। बट अदरवाइज़ अगर आपके पास वो बुक्स नहीं हैं तो आप रेन एंड मार्टिन को रेफ़र कर सकते हो। रेन एंड मार्टिन नाम की एक बुक है जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बहुत काम आती है। वहाँ से आपको पूरी बुक को पढ़ने नहीं बैठ जाना है क्योंकि वो भी आपको एक थिक बुक लगेगी पढ़ने के लिए। आपको कॉन्सेप्ट्स जैसे कि टेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, मोडल्स, ये सब चीज़ें, डिटर्मिनर्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, जो सब आपने आज तक पढ़ा है उन सबको रिवाइज करते चले जाना है। वोकैबुलरी बिल्ड करने के लिए आई हैव दिस वन आइडिया। आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, हर रोज़ में शायद आप कोई मूवी ही देख रहे हो, उसमें से भी आपको हर रोज़ 15 वर्ड्स नोट करने हैं और आपको अपनी वोकैबुलरी की एक बुकलेट या फिर एक नोटबुक बना लेनी है जहाँ पे आप हर रोज़ 15 वर्ड्स को नोट करोगे। उन 15 वर्ड्स के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स लिखोगे, यानी कि सेम, उनके जैसे सेम मीनिंग वाले वर्ड और उनसे डिफरेंट ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड आप वहाँ लिखोगे। दो सिनोनिम्स और दो एंटोनिम्स आप ज़रूर लिखो सारे ही वर्ड्स के, और साथ में आप उनसे रिलेटेड कोई 2 सेंटेंसेस फॉर्मुलेट करोगे जिससे कि आपको कॉम्प्रीहेंशन को रीड करने की एबिलिटीज़ बढ़ जाए। ये चीज़ आप डिक्शनरी के थ्रू भी कर सकते हो, बट क्योंकि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप डेफिनेटली कोई बुक्स रीड कर रहे होगे या आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे होगे या लीगल टर्मिनोलॉजी आपके सामने आ रही होगी डेफिनेटली, इसीलिए मैंने बोला कि आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, आप उसे नोट कर लो। इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू गिव पैसेजेस इन द CLAT एग्जाम इन द इंग्लिश सेक्शन। वो आएंगे ही आएंगे और उन पैसेजेस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन फ्रंट ऑफ मी देर इज़ दिस CLAT एग्जाम, CLAT क्वेश्चन पेपर ऑफ 2021 जो आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। यहाँ पे जो इंग्लिश का मुझे पहला क्वेश्चन दिखा वो है एक पैसेज फ्रॉम द बुक अ स्कैंडल इन बोहेमिया बाय आर्थर कॉनन डॉयल। बहुत फेमस ऑथर, बहुत फेमस बुक। उसमें से उन्होंने आपको एक पैसेज उठा के दिया, इसमें उन्होंने डिटेक्टिव्स की बात करी और उसके बाद इस पैसेज को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। पैसेज में आपको 2 लोगों के बीच कॉन्वर्जेशन दिख रही है, तो उस कॉन्वर्जेशन दिखते ही आपको हर पैसेज में एक चीज़ समझ लेनी होगी कि ये कॉन्वर्जेशन किसके बारे में है और किस सेटिंग में की जा रही है। अगर हम इसकी स्टार्टिंग देखें पैसेज की, तो यहाँ लिखा है आई रैंग द डोरबेल एंड वॉज शोन अप टू द चेम्बर विच हैड फॉर्मली बीन इन पार्ट माई ओन। दैट मीन्स यहाँ पे जो ऑथर है वो ये कह रहे हैं कि मुझे कोई ऐसा एरिया दिखा खोलते ही गेट को जो पहले पार्टली मेरा था, यानी कि मैं भी यहीं रिसाइड करता था। अब ये जो फर्स्ट लाइन ही है ना, आगे जाके आप देखोगे कि इससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो फ्रॉम द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड दैट
हमें ईजिली पता लग रहा है अर्लियर वॉटसन यूज टू लिव विद होम्स। यहाँ दो लोगों की बातें हो रही है, शुरू से ही हमें पता लग गया कि ये दोनों पहले साथ रहते थे, क्योंकि ऑथर ने शुरू में ही कह दिया ये पार्टली पहले मेरा भी था, ये जगह मेरी भी थी। साथ में अगर आप आगे जाओ तो वेरी इजीली आपको पैसेज से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जिनके बहुत सारे आंसर्स तो आपको पैसेज में ही मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 और 2 देखो, इसका डायरेक्ट आंसर आपको ऊपर पैसेज में मिल जाएगा। डिटेक्टिव ब्राउन के बारे में भी जहाँ बात है वो भी आपको इजीली मिल जाएगी। फिर अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 पे जाओ, वो है एंटोनिम। इनकॉरिजिबल का एंटोनिम क्या है? इनकॉरिजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको सुधारा ही ना जा सकता हो, जो बार बार सेम मिस्टेक्स करता है, यानी कि जो हैबिचुअल है, जो रिपेंट नहीं करता है अपनी मिस्टेक्स पे, उनको बार बार रिपीट करता है, जिसको क्योर नहीं करा जा सकता है। एंटोनिम मतलब उसका उल्टा क्या है? तो ऑफकोर्स यहाँ पे दिख रहा है कि उसका उल्टा, उसका ऑपोजिट वर्ड है रिपेंटेंट, यानी कि जो रिपेंट करता है, जो अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ करता है, उसे ठीक भी करता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में आते हैं। यहाँ से आपको जो टेस्ट करी जा रही है ना चीज़ें, वो ये है कि आपको नॉलेज ऑफ वर्ड्स कितनी है और आप एक पैसेज को पढ़ने के बाद कितना जल्दी उस चीज़ को कंक्लूड कर पाते हो। आई वुड रिकमेंड कि ये 500 वर्ड से ज़्यादा के पैसेजेस क्योंकि कभी नहीं होंगे, तो आपको इस पर 5 मिनट से ज़्यादा रीड करने में स्पेंड नहीं करने हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आप पैसेज पढ़ो, और पैसेज को पढ़ते पढ़ते उसकी मेन पॉइंट, मेन थीम एनालाइज करते जाओ। ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आपको इन्फेरेंस निकालना, समरी निकालना कितना आता है उस पर टेस्ट किया जा रहा है। लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पेपर, दैट्स जीके और जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड। इस पेपर में जब मैंने देखा तो मुझे जीके के 35 क्वेश्चंस मिले। जीके के सारे ही क्वेश्चंस वैसे आते हैं क्लैट एग्जाम में, जिनको अगर आपको पता है तो आप विद इन अ सेकेंड आंसर दे दोगे, अगर नहीं पता तो आप उसको नहीं पता लगा पाओगे, आपको उसमें ट्राई ही करना पड़ेगा, तुक्का ही लगाना पड़ेगा। जीके के लिए आप लोग बहुत बार पूछते हो कि कौन सी बुक्स हम रेफ़र करें, तो मैं बोलूँगी कि अरिहंत की जो कंपटीशन फोकस आती है उसको आप ले सकते हो। अगर आप प्रतियोगिता दर्पण जैसी मैगजीन को हर महीने पढ़ना चाहते हो तो आप वो ले सकते हो, बट प्रतियोगिता दर्पण की मंथली अगर आप लोगे तो वो थोड़ी थिक बुक है और हर महीने आपको थोड़ा सा वो ज़्यादा लगेगा पढ़ने के लिए। अरिहंत की आपको ईयरली बुक मिल जाएगी, उसको आप रेफ़र कर सकते हो। अदरवाइज़ आप यूट्यूब के सोर्सेज को रेफ़र कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो रोज़ के लिए आपको जीके के 10-20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हैं और ईयरली वाले क्वेश्चंस भी वो प्रैक्टिस कराते हैं। जीके, जब मैंने इस पेपर को देखा तो मुझे जीके से कुछ पर्टिकुलर एरियाज से क्वेश्चन मिले, और वो थे आर्मी रिलेटेड, बॉर्डर पे कोई क्राइसिस चल रहा है, टेंशन चल रही है, उससे रिलेटेड। उस टाइम पे इंडो चाइना बॉर्डर का बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे इश्यूज़ निकल के आ रहे थे, तो उससे रिलेटेड था जो भी 2019-20 में हो रहा था, क्योंकि एग्ज़ाम 21 का है। फिर कोविड रिलेटेड, क्योंकि वो एक नया कॉन्सेप्ट था, वैक्सीन्स नई नई आई थी, हम किस कंट्री को सप्लाई कर रहे हैं, ये वाली वैक्सीन किसने बनाई है, किसके कंसल्टेशन में बनी है। फिर एक क्वेश्चन, एक एरिया से क्वेश्चन तो जीके में हमेशा ही आता है, हमें उस ईयर के हर मिनिस्टर का नाम और उनका पोर्टफोलियो पता होना चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ हैं। फिर फंड से रिलेटेड आता है, सरकार ने कितना फ़ंड किस चीज़ को दिया है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा ही कॉमन है, जैसे कि आपको WTO, UN, यूनेस्को, NHRC, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक और एरिया है जहाँ से क्वेश्चन शॉर्ट होते हैं, और वो होते हैं डेज़ एंड थीम्स, जैसे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाटर डे, ये सब कब है ये तो आपको डेफिनेटली अपने दिमाग में बसा के रख ही लेना चाहिए। और अगर हम कंसोर्टियम ऑफ NLUs वाली वेबसाइट देखें तो वो बोलते हैं कि हम आपसे वही इश्यूज़ पे क्वेश्चन पूछेंगे जो कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज़ हैं और जिनकी रेलेवेंस है आज भी, यानी कि 2021 और 22 में अब तक जो भी हुआ है, जो भी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट किए गए हैं, उनसे रिलेटेड जीके वाले क्वेश्चंस आने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं। तो दोनों ही बुक्स को आप रेफ़र कर सकते हो जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा भी अगर आपको कोई बुक लगे तो आप देख सकते हो। साथ में न्यूज़पेपर तो आप डेली पढ़ते ही रहो। द हिंदू सब रेकमेंड करते हैं, मुझे इंडियन एक्सप्रेस भी ठीक लगती है, आप एडिटोरियल पढ़ो उसका, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। साथ में लोग बोलते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल्दो 6 से लेकर 10 तक की SST सोशल साइंस की बुक्स पढ़नी ज़रूरी नहीं है, बट अगर आपके पास टाइम है तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप उसको भी एक बार ग्लांस थ्रू कर लो, बट उसको आप एंड के लिए रखना। स्टार्टिंग में अगर आप वो करने बैठोगे तो आपका बहुत सारा टाइम वहीं पर चला जाएगा।
एडिशनली लोकसभा एंड राज्यसभा जैसे चैनल्स देखने भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि पार्लियामेंट रिलेटेड क्वेश्चंस, कौन से नए बिल्स आए, कौन सी नई एक्ट पास हुई, नया लॉ बना, ये सब भी बहुत कॉमनली देखने को मिल जाते हैं एग्ज़ाम में. Now we come to the third area, and that is legal reasoning. Legal reasoning is extremely important because I have seen nearly 40 questions in last year's CLAT exam paper from legal reasoning. Legal reasoning में if you're thinking that you need to have a well-versed knowledge of all the laws in the India and around the world, you are very wrong here. आप अभी लॉ स्कूल में आए नहीं हो, लॉयर बने नहीं हो, इसलिए आपको वो लॉज पे टेस्ट नहीं करेंगे. इन क्वेश्चंस को इस तरह से समझो कि जैसे मान लो मैं एक टीचर हूँ, मैं आपको किसी चीज़ पे इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, आज मैं आपको पढ़ा देती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है. ये चीज़ मैं आपको पूरी लिख के दे देती हूँ एक 500 वर्ड्स के पैसेज में, आप समझ लेते हो वो चीज़, और फिर मैं उसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ कि ओके बच्चों, आपको कॉन्ट्रैक्ट का ये मतलब समझ आया, आपको अग्रीमेंट का मतलब समझ आया, आपको पता लगा कि कंसिडरेशन क्या होती है, कि आपको पता लगा कि फ्रॉड का मतलब क्या है. मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, एंड ओनली देन आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन based on that information, and that will happen in the legal reasoning section of your CLAT exam. You will be given all information related to the concept, and only then you will be asked questions upon that. So do not worry, you do not need to remember the sections, the articles and all for legal reasoning section. That is based upon reasoning. They don't want to test you on the laws. In fact, they want to test you on the understanding of that passage and understanding of what is given to you already. सो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो डेफिनेटली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिलेटेड मिलते हैं, टॉर्ट रिलेटेड मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड भी मिल जाते हैं. फिर मैंने HMA यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड भी यहाँ क्वेश्चंस देखे. साथ में मैंने कुछ सिविल डॉक्ट्रिन्स जैसे कि रेस जुडिकाटा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस देखे. लीगल मैगजीन से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने देखे, यानी कि जो लीगल लैंग्वेज में कुछ फ्रेजेस होते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, उससे रिलेटेड. फिर मैंने रिट से रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चन देखे, जो कि कॉन्स्टी रिलेटेड हम कह सकते हैं, बट इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके लिए आपको प्रायर लीगल नॉलेज चाहिए हो. फिर भी क्योंकि आप लोग बोलते हो कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने से सब्जेक्ट्स की, टॉपिक्स की, आप उन क्वेश्चंस को ईजिली कर पाते हो बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. अगेन उसके लिए आप किसी भी बुक को रेफ़र कर सकते हो जिसमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड दे रखी हो, और उसमें से एक यूनिवर्सल की बुक होती है क्लैट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने में, यू कैन ईजिली रेफ़र टू दैट. बाकी अगर आपको रीसेंट जजमेंट्स की नॉलेज चाहिए तो वो मैं अपने चैनल पे आपको देती रहती हूँ, वीलॉगिश पे आपको मिलती रहती हैं. वो सारी जजमेंट ऐसे ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होती हैं जिससे आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा. फिर अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जो सबसे ज़्यादा लीगल रीजनिंग में आता है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ लिया तो आपको लीगल रीजनिंग करने के लिए, बेसिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ लिया तो लीगल रीजनिंग करने के लिए आपको बहुत कम टाइम लगेगा, और 40 क्वेश्चंस ये अटेम्प्ट करने में, इनको ठीक करने में बहुत आसानी होगी. उसके लिए मैंने अपने चैनल पे एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक्स को लेके बनाई हुई है. आई वुड रिकमेंड कि आप वो सारी प्लेलिस्ट देखो और उससे नोट्स बनाओ और फिर उसी को पढ़ो. बहुत ज़्यादा सोर्सेज को मत रेफ़र करना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड पर्पस के लिए आप वो पढ़ रहे हो, उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. उससे ज़्यादा है कि आप अपना GK, इंग्लिश, ये सब ब्रशअप करने पे ध्यान दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग कम्स फॉर 30 मार्क्स. इट केम फॉर 30 मार्क्स इन द लास्ट ईयर्स पेपर. दैट मीन्स 30 क्वेश्चंस इन टोटल. लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ पे अगर आपकी फोकस करने की एबिलिटी अच्छी है और आप उन क्वेश्चंस को बहुत बार प्रैक्टिस किया है तो आप बहुत ईजिली ये 30 क्वेश्चंस अटैम्प्ट भी कर पाओगे और ठीक भी कर पाओगे. फिर भी अगर आप कोई बुक कहते हो तो मुझे रिसर्च करने के बाद एक RS अग्रवाल की लॉजिकल रीजनिंग की बुक अच्छी लगी, इसको आप रेफ़र कर सकते हो. यहाँ पे वर्बल रीजनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स आती है, और भी कुछ रीजनिंग के एस्पेक्ट आते हैं. क्वांटिटेटिव यहाँ नहीं आती क्योंकि वो एक अलग सेक्शन है इस पेपर का ऑल टुगेदर. लॉजिकल रीजनिंग में आपको 300 वर्ड्स के फिर से पैसेज मिलेंगे जनरली, और उस पैसेज की अंडरस्टैंडिंग पे अगेन आपको टेस्ट किया जाएगा. जैसे कि एक पैसेज में आपको 300 वर्ड्स में कोई बात बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बताई जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इस पैसेज की समरी क्या है, ज़रा बताना. एक क्वेश्चन जो भी आपको अप्रोप्रिएट आंसर लगता है उस पर टिक कर दो. फिर आपसे उस पैसेज से भी अगेन ये सब भी पूछा जा सकता है कि आप इस पैसेज को लेके क्या डिड्यूस कर रहे हो, आपके अकॉर्डिंग लॉजिकल कंक्लूजन क्या होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग ये दो लोग बात कर रहे थे तो वो क्या कर रहे थे.
ऐसे क्वेश्चन सिर्फ इसी तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, इसी तरीके से आपको इसमें कॉन्फिडेंस आ सकता है कि आप लास्ट 10 ईयर्स के सारे पेपर्स डाउनलोड कर लो और उसमें से हर एक लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। उसके अलावा अगर RS अग्रवाल की बुक ले रहे हो तो सारे क्वेश्चंस उसमें से अटेम्प्ट कर दो आप, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ईजिली कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स द पार्ट वेयर क्वांटिटेटिव रीजनिंग ऑफ योर्स इज टेस्टेड। क्वांटिटेटिव एनालिसिस दैट मीन्स मैथ। यहाँ पे कोई हाई लेवल की मैथ नहीं बल्कि 6th से लेकर 10th तक की 10th लेवल तक की मैथ में आपको टेस्ट किया जाता है। अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, प्रपोर्शंस, रेशोज़ एंड अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। अगर आपने अच्छे से 10th तक की मैथ आती है आपको तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर नहीं भी आती है तो आपको मैं बुक के नाम बता देती हूँ। अगेन RS अग्रवाल की भी बुक आती है, फिर मैथ 30 डेज वंडर करके एक बुक आती है बाय खुराना एंड मारकांडे एंड इट इज़ एडिटेड बाय S चांद। S चांद की एडिटेड बुक्स मुझे वैसे भी स्कूल में भी जब मैं थी तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो पढ़ने में। उनकी अप्रोच बहुत अच्छी होती है आपको एक्सप्लेन करने में। उसके अलावा आप NCERT टेक्स्ट बुक को रेफ़र कर सकते हो। इस बुक से जो मैंने आपको बुक बताई, यहाँ से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स काफ़ी पता लगेंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जल्दी करने के लिए वही मैटर करती है। ऑल्दो मैंने देखा कि लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में क्वान्टिटेटिव पार्ट वॉज ओनली फॉर 15 मार्क्स, दैट इज़ टोटल 15 क्वेश्चंस वर देयर, बट क्वांटिटेटिव एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे आपकी गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर आप वो लोग हैं जिनको मैथ में चॉइस और अगर आप वो लोग हो ना जिनको मैथ में चांसेस नहीं लेने हैं, जिनको लगता है कि मेरे को इसको इतना नहीं पढ़ना, मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप उसको लीव आउट भी कर सकते हो। 15 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन हो जाए ईज़िली, जल्दी से हो जाए, तो इसको लीव आउट मत करना, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस हैं क्रैक करने के एग्ज़ाम को, सारे क्वेश्चन को क्रैक करने के जितने भी हैं यहाँ पे। इवन आई वॉज़ नॉट वेरी गुड एट मैथ, मुझे इतना अच्छा भी नहीं लगता था, लेकिन फिर भी टिप्स एंड ट्रिक्स जब आ गई थी तो उसके बाद ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाया करते थे। आपको भी कर लेने चाहिए। NCERT टेक्स्ट बुक भी रेफ़र कर सकते हो आप 10th स्टैंडर्ड की। वैसे तो इसके लिए भी यही ठीक है आपकी जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो दीज वर दोज 5 एरियाज। दिस वॉज द एनालिसिस ऑफ द लास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर दैट आई डिड स्पेशली फॉर यू ऑन रिक्वेस्ट ऑफ वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स. If you think you like this video, give me a thumbs up in the comment section below. And if you are confused whether you should pursue 5-year law or 3-year law after pursuing your graduation from another college, another institute, then you should watch this video that is there in the I button. I made it specifically for all those people who are confused at this point and wish to know कि 3-year या 5-year में differences क्या हैं, कौन सा करना आपकी पोजीशन के हिसाब से बेटर रहेगा। अगर आपको और भी कोई क्लैट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या फिर कोई इश्यूज़ हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हो। अगर इतनी वीडियो देख ली है तो सब्सक्राइब टू द चैनल हियर, प्रेस द बेल आइकन एज वेल. आई विल मीट यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो ऑन अ न्यू कॉन्सेप्ट. बाय फॉर नाउ.